Hello students, good morning. Welcome to SAS online classes. Students, we were reading chapter 3 Olympic Granny of our English literature book SV Sasta. In our last video, our topics were exercise A, answer these questions, and next was exercise B, answer these questions with reference to the contest, and vision to page number 30 of chapter 3 Olympic Granny. So students, we have read and solved exercise A, answer these questions, and exercise B first answer these questions with reference to the contest of chapter 3 Olympic Granny, which is on page number 30 in our FAR English Literature notebook in our last video. And since today's our topics are first exercise B second, and next is exercise C think and answer, which is in your page number 30 of this chapter 3 Olympic Granny. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today we are going to solve exercise B second and exercise C, which is in page number 30 of chapter 3 Olympic Granny in our FAR English Literature notebook in our 2 days class. Okay, so let's see exercise C of this chapter 3. Okay, so since we have completed first 3 questions. Okay, A to C question. ओके ए टू सी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज बी फर्स्ट जो बी एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट था उससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन है वो वी हैव सॉल्व इट. ओके, हम ये सॉल्व कर चुके थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड नंबर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी का जो सेकेंड नंबर कॉन्टेक्स्ट है ना, ओके, उससे अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी सेकेंड नंबर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. ओके, so students, it's your second number context of the given exercise B. Okay, let's see. Each house she wins all contest with her wheelchair and her walker. Okay, each means है, how means कैसे, C means where, wins means जीतती हैं, all means सभी, contest means CONTEST. contest means student होते हैं प्रतियोगिता, विथ मीन्स साथ में, हर मीन्स अपने व्हील चेयर मीन्स चार पहियों की कुर्सी, एंड मीन्स और हर मीन्स अपने वॉकर. ओके, इच हाउस सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट. ओके, तो वह सारी प्रतियोगिताएं कैसे जीतती हैं, विथ हर व्हीलचेयर एंड हर वॉकर. इट्स मीन अपनी व्हीलचेयर और वॉकर के साथ. योर सेकेंड नंबर कॉन्टेस्ट मीन इज इट्स हाउस सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट विथ हर व्हीलचेयर एंड हर वॉकर. इट्स मीन कि वह अपनी व्हीलचेयर और वॉकर के साथ सारी प्रतियोगिताएं कैसे जीतती है. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी अ नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस गिवन सेकेंड नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज बी. ओके, so students, your a number question is who is the speaker referring to in these lines. Okay, who means कौन, it means है, this speaker means वक्ता, बोलने वाला. जो स्पीक करते ना उसे बोलते हैं स्पीकर. ओके, स्पीक मीन्स होते हैं बोलना एंड स्पीकर मीन्स बोलने वाला. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम ए स्पीकर बिकॉज आई एम स्पीकिंग एंड यू आर अ लिसनर बिकॉज यू आर लिसनिंग नाउ. ओके, तो मैं अभी एक स्पीकर हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप एक श्रोता हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं. ओके, तो स्पीकर मीन्स होते हैं बोलने वाला, वक्ता. ओके, रिफरिंग मीन्स होता है, रिफरिंग मीन्स संदर्भित कर रहा है, टू इन दीज लाइन्स, इट्स मीन इन पंक्तियों में. ओके, तो स्टूडेंट, योर ए नंबर क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर रिफरिंग टू इन दीज लाइन्स. ओके, इट्स मीन ये इन लाइनों में, इन पंक्तियों में वक्ता क्या संदर्भित करे. ओके, कौन संदर्भित करे. क्लियर. इट्स मीन हो गया कि हु इज द स्पीकर रिफरिंग टू इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में वक्ता किसको संदर्भित कर रहा है. ओके, to student, your A number answer is this speaker is referring to in these lines that it is shocking that grandma wins all contest with her wheelchair and her walker. Okay, the students, your A number answer is this speaker is referring to in these lines that it is shocking that grandma wins all contest with her wheelchair and her walker. Okay, this speaker means वक्ता, it means है, referring means REFERRING, referring means संदर्भित कर रहा है, to in these lines, it's mean इन पंक्तियों में, that means की, it means है shocking. ओके, इट मीन्स ये है, इट मीन्स है, शॉकिंग मीन्स आश्चर्यचकित कर रहा है, हैरान कर रहा है. दैट मीन्स की ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ. ओके, विंस मीन्स जीतती है, ऑल मीन्स सभी, कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिताएं. ओके, विथ मीन्स साथ में, या से हर मीन्स अपनी व्हीलचेयर मीन्स चार पहियों वाली कुर्सी के साथ, एंड मीन्स हर मीन्स उनकी वॉकर. ओके, so students, your A number answer is the speaker is referring to in these lines that it is shocking that grandma wins all contest with her wheelchair and her walker. Okay, तो वक्ता संदर्भित कर रहा है इन पंक्तियों में कि हैरान कर देने वाली बात ये है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये है कि दादी माँ अपनी व्हीलचेयर और वॉकर के साथ सभी कॉन्टेस्ट को जीत रही हैं, सभी प्रतियोगिताओं को जीत रही है. ओके, द स्पीकर इज रेफरिंग टू इन दिस लाइन्स दैट इट इज शॉकिंग दैट ग्रैंडमा विंस ऑल कॉन्टेस्ट विद हर व्हीलचेयर एंड हर वॉकर. वक्ता
इन पंक्तियों में संदर्भित कर रहा है ओके कि हैरान कर देने वाली बात, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि दादी माँ अपनी व्हीलचेयर और वॉकर के साथ सभी प्रतियोगिताओं को, सभी कॉन्टेस्ट को विन कर रही हैं, उन्हें जीत रही हैं। क्लियर? Okay student, let's see B number question of this exercise B second. Your B number question is how does she win all contest? Okay, how means कैसे, does it's your present independence tense helping verb in singular form, she means वह, win means जीतती, okay जीतती है या जीता, ऑल मीन्स सभी, कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता। ओके, हाउ डज सी विन ऑल कॉन्टेस्ट? ओके, तो उन्होंने सारी प्रतियोगिताएं कैसे जीती? ओके, तो वह सारी प्रतियोगिता कैसे जीतती है? इट्स अ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस। ओके, हाउ डज सी विन ऑल कॉन्टेस्ट? इट्स मीन वह सारी प्रतियोगिताएं कैसे जीतती है? ओके, तो स्टूडेंट लेट्स सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर बी इज सी विन्स ऑल कॉन्टेस्ट बाय सी विल ऑल कॉन्टेस्ट विथ हर wheelchair and her walker. Okay, so students, your B number answer is she wins all contest with her wheelchair and her walker. Okay, तो she means वह, wins means जीतती है, all means सभी, contest means प्रतियोगिताएं, it means से या साथ में, her means अपने, wheelchair means चार पहियों वाली कुर्सी, and means और her means अपने walker. Okay, तो she wins all contest with her wheelchair and her walker. तो वह सारी प्रतियोगिताएं अपनी व्हीलचेयर और वॉकर के साथ जीतती है। ओके, व्हीलचेयर मीन्स होता है स्टूडेंट्स चार पहियों वाली कुर्सी, एंड वॉकर मीन्स स्टूडेंट्स होता है, वॉक मीन्स क्या होता है? टैल, एंड वॉकर मीन्स जैसे कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा किसी ओल्ड पर्सन को, किसी बूढ़े व्यक्ति को, तो वो एक स्टिक लिए होते हैं ना, और वो स्टिक उनकी हेल्प करती है, वॉक का नेम है ना, तो उसी को बोलते हैं वॉकर। क्लियर? जब कोई पर्सन बहुत ओल्ड होता है तो वो वॉकर की हेल्प लेता है वॉक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, योर बी नंबर आंसर इज सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट विथ हर व्हीलचेयर एंड हर वॉकर। इट्स मीन कि वह, उन्होंने सारी प्रतियोगिताएं अपनी व्हीलचेयर और अपनी वॉकर के साथ में जीती। ओके, वह सारी प्रतियोगिताएं अपनी व्हीलचेयर और अपनी वॉकर के साथ में जीतती हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाट डज व्हीलचेयर एंड वॉकर सिग्निफाई? ओके, सो व्हाट डज व्हीलचेयर एंड वॉकर साइनिफाई? ओके, इट्स अ सी नंबर क्वेश्चन। व्हाट मीन्स क्या, डज इट्स अ प्रेजेंट डिपेंडेंस टेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, व्हीलचेयर मीन्स चार पहियों वाली कुर्सी, एंड मीन्स वॉकर मीन्स स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन you that walker, it's बोल सकते हैं, we can to say that a thin stick. ओके, एक स्टिक बोल सकते हैं जो एक ओल्ड पर्सन की, ओल्ड पीपल की, ओके, बूढ़े लोगों की हेल्प करता है वॉक करने, उसे बोलते हैं वॉकर। ओके, व्हाट डज व्हीलचेयर एंड वॉकर सिग्निफाई? सिग्निफाई स्टूडेंट्स मीन्स होता है सैग्निफाई, SIGNIFY। सैग्निफाई मीन्स स्टूडेंट्स होता है कि प्रतीक हो। ओके, क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या किसका प्रतीक है? व्हाट डज व्हीलचेयर एंड वॉकर सिग्निफाई? व्हाट मीन्स क्या, डज व्हीलचेयर मीन्स चार पहियों वाली कुर्सी, एंड मीन्स ऑफ वॉकर मीन्स वॉकर, साइग्निफाइंस इट्स मीन प्रतीक है। तो व्हाट डज व्हीलचेयर एंड वॉकर साइग्निफाई? इट्स मीन व्हीलचेयर और वॉकर क्या प्रदर्शित करता है, किसका प्रतीक है? ओके, तो ये व्हीलचेयर और जो वॉकर है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, किसका प्रतीक है? ओके, सो स्टूडेंट्स, योर सिनेमा आंसर इज व्हीलचेयर एंड वॉकर सिग्निफाई दैट ग्रैंडमा इज वेरी ओल्ड। ओके, ये जो व्हीलचेयर है, चार पहियों वाली कुर्सी, एंड मिस और जो वॉकर है ना, ओके, जिसकी हेल्प से ग्रैंडमा चलती है ना, तो वॉक करती है, उसे बोलते हैं वॉकर। ये जो वॉकर है और व्हीलचेयर है, सिग्निफाइंस मीन प्रतीक है। ओके, प्रदर्शित करते हैं, दैट मीन्स की ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ, इज मीन्स है वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड मीन्स बूढ़ी है, द मीन ऑफ ओल्ड दैट बूढ़ी, नॉट पुराना। ओके, ओल्ड का मीन वैसे पुराना भी होता है, बट हियर्स द करेक्ट मीन ऑफ ओल्ड इज बूढ़ा। ओके, students, your cinema answer is wheelchair and walker signifying that grandma is very old. Okay, तो व्हीलचेयर और वॉकर ये साइनिफाई कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, इसका प्रतीक है कि दादी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी। ओके, एंड स्टूडेंट, यू रिमेंबर दैट व्हाट्स एज ऑफ ग्रैंडमा? ग्रैंडमा की एज क्या है? तो स्टूडेंट्स, द ग्रैंडमास एज इज 99 ईयर्स ओल्ड। ग्रैंडमा इज 99 ईयर्स ओल्ड लेडी। जो ग्रैंडमा है वो 99 ईयर ओल्ड की एक लेडी है। ओके, 1/100 ईयर्स ओल्ड की एक लेडी है। ओके, so students, we have completed all questions of this remaining exercise B. Okay, we have solved exercise B second. Now we are going to solve exercise C, think and answer of this chapter 3 Olympic games in our fair English literature notebook. Let's see exercise C. You exercise C, think and answer. Think means विचार करिए, and means और, answer means उत्तर दीजिए। Okay, think and answer, it's exercise C, it's mean विचार करिए और उत्तर दीजिए। Your question number first is describe how grandma excels at different types of sports. Okay, describe how grandma excels at different types of sports. Okay, describe means
वर्णन करिए। हाउ मीन्स कैसे, ग्रैंड मीन्स माँ मीन्स दादी माँ, एक्सेल्स मीन्स होता है निपुण थी। ओके, एट डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न अलग अलग, टाइप्स मीन्स प्रकार के, ऑफ मीन्स के, स्पोर्ट्स मीन्स गेम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ ग्रैंड माँ एक्सेल्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। इट्स मीन कि दादी माँ भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में कैसे निपुण थी, उसे वर्णन करिए। ओके, दादी माँ भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में किस प्रकार से निपुण थी उसका वर्णन करें। तो स्टूडेंट योर फर्स्ट नंबर आंसर इज Grandma excels at athletics, archery, taekwondo and table tennis. She has mastered the canoe and the trampoline, and she is best at lifting weights, high jumps and hammer throwing. Okay, तो स्टूडेंट्स ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ, एक्सेल्स मीन्स निपुण थी, एट एथलेटिक्स में, आर्चरी मीन्स स्टूडेंट्स रो एंड बो का एक स्पोर्ट होता है, सो बोलते हैं आर्चरी। ओके, धनुष बाण का। ओके, टैगविंडो एंड टेबल टेनिस। ओके, तो ग्रैंडमा एक्सेल्स एट एथलेटिक्स, आर्चरी, टैगविंडो एंड टेबल टेनिस। दादी माँ एथलेटिक्स, आर्चरी, टैगविंडो और टेबल टेनिस में निपुण थी। ओके, निपुण रहती है। सी हैज मास्टर्ड द कैनोई एंड द ट्रैम्पोलिन। ओके, सी मीन्स वह, मास्टर्ड मीन्स मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छी। ओके, द कैनोई मीन्स कैनोई की, एंड मीन्स और, द ट्रैम्पोलिन। ओके, स्टूडेंट्स सी हैज मास्टर्ड द कैनोई एंड द ट्रैम्पोलिन। इट्स मीन वह कैनोई और ट्रैम्पोलिन की मास्टर थी। ओके, मास्टर थी। and she has best of lifting weights, high jumps and hammer throwing. Okay, C means where, it means best means सबसे ज़्यादा अच्छी, बेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, एंड बेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा अच्छा। ओके, सी इज बेस्ट, वह सबसे ज़्यादा अच्छी थी एट लिफ्टिंग वेट्स, इट्स मीन वजन उठाने में, एंड हाई जंप्स मीन्स ऊंची कूद, एंड मीन्स और, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, एंड थ्रोइंग मीन्स फेंकना, हैमर थ्रोइंग मीन्स होता है हथौड़ा फेंकना, वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज निशाने लगाने को बोल सकते हैं हैमर थ्रोइंग। सी इज बेस्ट एट लिफ्टिंग वेट्स, हाई जंप्स एंड हैमर थ्रोइंग, वह सबसे ज़्यादा अच्छी वेट को लिफ्ट करने में, हाई जंप में और हैमर थ्रोइंग करने में थी। ओके, तो स्टूडेंट योर फर्स्ट नंबर आंसर इज ग्रैंडमा एक्सेल्स एट एथलेटिक्स, आर्चरी, टैगविंडो एंड टेबल टेनिस. She has mastered the canoe and the trampoline. She is best at lifting weights, high jumps and hammer throwing. ओके, तो दादी माँ एथलेटिक, आर्चरी, टैगविंडो और टेबल टेनिस में निपुण थी। ओके, और वह कैनोई और ट्रैम्पोलिन की मास्टर है। ओके, सी इज़ बेस्ट एट लिफ्टिंग वेट्स, हाई जंप्स एंड हैमर थ्रोइंग, और वह सबसे ज़्यादा अच्छा वेट लिफ्ट करती हैं, हाई जंप करती है और हैमर थ्रोइंग करती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सी ऑफ गिवन एक्सरसाइज सिटिंग एंड आंसर. Okay, so students, let's see question number second. Question number second is it always necessary to be young to succeed in sports? Justify using examples from the womb. It's mean, is it always necessary? Always means हमेशा. Okay, सदैव. necessary means जरूरत या आवश्यकता. Okay, to he young, he means very young. To succeed means होता है सक्सेस होना, सफल होना. in means sports means खेलो. ओके, तो इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू बी यंग टू सक्सेड इन स्पोर्ट्स? इट्स मीन, क्या ये जरूरी है कि कोई यंग पर्सन हो तो ही वो स्पोर्ट में सक्सेस अचीव कर सके? ओके, कि स्पोर्ट्स में सक्सेस अचीव करने के लिए क्या जरूरी है कि कोई यंग ही हो? ओके, एंड जस्टिफाई यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम. इट्स मीन जस्टिफाई करिए यूजिंग एग्जाम्पल का यूज करके फ्रॉम द पोम. इट्स इन पोएम से एग्जाम्पल का यूज करके जस्टिफाई करिए कि क्या ये जरूरी होता है कि मतलब जो पर्सन यंग हो वही स्पोर्ट में अच्छे हो. ओके, इट्स मीन कि इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू बी यंग टू सक्सेड इन स्पोर्ट. इट्स मीन कि खेल में सफलता पाने के लिए यंग होना जरूरी होता है. हमेशा के लिए यंग होना, मतलब हमेशा यंग होना जरूरी होता है खेल में सक्सेस अचीव करने के लिए. ओके, this friends, your second answer is no, it's not always necessary to be young to succeed in sports, because if someone wants to achieve success in sports on other areas, said he oblique she does very hard work for it, he oblique she is loyal for his oblique her work, then there's no any importance of his oblique her work, then that's any other things for success to that person. Okay, it's mean हो गया नहीं, it's not always necessary to be young to be succeed sports. Okay, और other area. Okay, it's mean नहीं, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि स्पोर्ट्स में या किसी अदर एरिया. इट्स मीन खेल की बात करें या किसी अदर एरिया की बात करें, अदर क्षेत्र की बात करें, तो ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें सफलता पाने के लिए, फिर वो चाहे आपका स्पोर्ट हो या कोई अदर एरिया. ओके, खेलों
में या किसी दूसरी जगह पे ओके दूसरी चीज़ों में सफलता पाने के लिए यंग होना जरूरी नहीं होता है ओके बिकॉज मीन्स क्योंकि इफ समवन वांट्स टू अचीव सक्सेस ओके इफ मीन्स यदि समवन मीन्स कोई ओके वांट्स मीन्स चाहता है टू अचीव मीन्स प्राप्त करना ओके पाना सक्सेस मीन्स सफलता बिकॉज इफ समवन वांट्स टू अचीव सक्सेस इट्स मीन यदि कोई सफलता पाना चाहता है ना तो इन स्पोर्ट्स मीन्स खेलों में और मीन्स या अदर एरिया मीन्स दूसरी क्षेत्रों में ओके it's your the mean of this line is ki in sports because no it's not always necessary to be young to succeed in sports because if someone wants to achieve success in sports or other area okay कि नहीं ये ज़रूरी नहीं होता है कि स्पोर्ट में सक्सेस अचीव करने के लिए खेलों में सफलता प्राप्त करने के लिए यंग होना ही बहुत ज़रूरी होता है ओके क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सक्सेस को अचीव करना चाहता है सफलता को पाना चाहता है ओके वो चाहे स्पोर्ट हो या किसी अदर एरिया स्पोर्ट में खेलों में या किसी अदर क्षेत्र में अगर वो सक्सेस को अचीव करना चाहता है ओके तो ज़रूरी नहीं है कि कोई यंग पर्सन हो तो ही वो मतलब उसमें सक्सेस अचीव कर सके ही ऑब्लिक सी ओके सो स्टूडेंट्स अगर कोई मेल है या फीमेल है कोई भी पर्सन है अगर इज लॉयल फॉर हिज ऑब्लिक हर वर्क ओके इट्स मीन यदि वह लॉयल मीन्स वफादार ओके विथ ऑनेस्टी तो स्टूडेंट्स अगर वह वफादार है अपनी कार के लिए ओके then that's no any importance of his oblique her age personality caste and other things for success to that person okay तो स्टूडेंट्स ही इज लॉयल फॉर ही इज ऑब्लिक हर वर्क ओके अगर कोई मेल है या फीमेल है ओके तो डज नॉट मैटर अबाउट जेंडर ओके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर कोई मेल है या फीमेल है और वह सक्सेस अचीव करना चाहता है स्पोर्ट में ले लो या किसी अदर एरिया में ले लो ओके तो ये जरूरी नहीं है कि वो यंग हो ओके और क्यों जरूरी नहीं है क्योंकि यदि वह अपने वर्क के प्रति लॉयल है अपने कार्य के प्रति वफादार है ओके एंड देन दैट्स नो एन इम्पोर्टेंस ऑफ हिज ऑब्लिक हर एज ओके तो उसकी जो इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व ओके ऑफ मीन्स की हिज ऑब्लिक हर मीन्स उसकी ओके एज मीन्स उम्र एंड पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व कास्ट मीन्स जाति एंड मीन्स और अदर थिंग्स मीन्स दूसरी चीज़ों फॉर सक्सेस मीन्स सफलता के लिए टू दैट पर्सन मीन्स उस व्यक्ति के लिए ओके तो स्टूडेंट योर सेकंड नंबर आंसर इज नो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी यंग टू सक्सीड इन स्पोर्ट्स बिकॉज इफ समवन वांट्स टू अचीव सक्सेस इन स्पोर्ट्स ऑन or other area and he oblique C does very hard work for it he oblique C is loyal for his oblique her work then there's no unimportance of his oblique her age personality caste and other things for success to that person okay so it's mean student your second number answer mean is that कि जरूरी नहीं है कि खेलों में स्पोर्ट्स में किसी अदर एरिया में किसी दूसरे क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यंग ही हो ओके इट्स मीन ये जरूरी नहीं है कि कोई यंग पर्सन हो तो ही मतलब वो स्पोर्ट्स में या किसी अदर एरिया में सक्सेस पा सकता है ओके इट्स मीन कि स्पोर्ट्स में या किसी अदर एरिया में सफलता पाने के लिए यंग होना जरूरी नहीं है ओके बिकॉज मीन्स क्योंकि ओके यदि कोई सक्सेस होना चाहता है इफ समवन वांट्स टू अचीव सक्सेस इन स्पोर्ट्स और अदर एरिया क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में खेलों में या किसी अदर एरिया में दूसरे क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है और एंड ही ऑब्लिक सी डज वेरी हार्ड वर्क फॉर इट और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है बहुत कठिन परिश्रम करता है ही ऑब्लिक सी इज लॉयल फॉर इज ऑब्लिक हर वर्क दैन ओके तो इट्स मीन कि और वह बहुत ही लॉयल है बहुत ही वफादार है अपने कार्य के प्रति इट्स मीन वो ऐसा नहीं करता है कि हाँ अगर मन नहीं है तो वर्क नहीं करेंगे है ना कि रहने दो कोई भी एक्सक्यूज़ दे दिया कि हाँ आज हम यहाँ विजिट करने चले गए तो इसलिए वर्क कंप्लीट नहीं किया ओके चलो नहीं मन हो रहा है नहीं आज वर्क करते चलो आज क्लास नहीं लेते ना तो वो अपने वर्क के प्रति मतलब स्वयं से झूठ नहीं बोलता किसी और से झूठ नहीं बोलता अपने टीचर से झूठ नहीं बोलता अपने वर्क के प्रति लॉयल है अपने कार्य के प्रति वो कैसे वफादार है ओके अपने वर्क को बहुत ही हॉनेस्टी से कंप्लीट कर रहा है तो अगर वो बहुत कठिन परिश्रम करता है अपने वर्क के लिए अपनी सक्सेस के लिए और अपने कार्य के प्रति वो वफादार है देन देयर्स नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ हिज हर एज पर्सनैलिटी कास्ट एंड अदर थिंग्स फॉर सक्सेस टू दैट पर्सन तो सफलता पाने के लिए उस व्यक्ति की एज पर्सनैलिटी कास्ट इट्स मीन उस व्यक्ति की उम्र व्यक्तित्व और जाति की का कोई भी महत्व नहीं है ओके सफलता पाने के लिए क्या तो इट्स मीन कि स्टूडेंट्स खेलों में या किसी दूसरे क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि यंग हो ओके तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी यंग टू सक्सेड इन स्पोर्ट्स ओके जरूरी नहीं कि जो यंग हो वही खेलों में या किसी अदर एरिया में सफलता प्राप्त कर सके
ओके जरूरी नहीं कि आपको जब जो कोई यंग ही हो तो ही सफलता प्राप्त कर सके स्पोर्ट्स या किसी अदर एरिया में, क्योंकि यदि कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, अपने कार्य के प्रति वो वफादार है, ओके लॉयल है, और तो स्ट्रेंथ उस पर्सन की एज, पर्सनैलिटी, कास्ट, उम्र, व्यक्तित्व और जाति का उस सक्सेस के लिए, उसकी सफलता के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का। ओके तो उसकी उम्र, उसका व्यक्तित्व और उसकी जाति का कोई भी महत्व नहीं होता है सफलता प्राप्त करने के लिए। ओके इट्स मीन कि स्टूडेंट अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपकी एज, पर्सनैलिटी या कास्ट उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। इट्स मीन आपकी एज, पर्सनैलिटी और कास्ट उसमें मतलब रोक नहीं सकती आपको अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके और आप अपनी वर्क के प्रति लॉयल हैं। ओके तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस को अचीव करने के लिए, यहाँ तक कि आपकी एज, पर्सनैलिटी, कास्ट या कोई अदर थिंग्स भी नहीं। ओके सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. योर क्वेश्चन नंबर 3 इज पीपल आर often asked to behave according to their age. Do you think it's appropriate? Okay पीपल मीन्स लोग, आर मीन्स है, ऑफन मीन्स प्राय, ओके अक्षर, आस्क मीन्स पूछते हैं या कहते हैं, ओके टू बिहेव मीन्स व्यवहार करने के लिए, बर्ताव करने के लिए, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, ओके अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, ओके टू डियर मीन्स उनके, एज मीन्स उम्र। ओके पीपल आर ऑफन आस्क्ड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू डियर एज, इट्स मीन लोगों से मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करो, अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करो। ओके उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो, अपनी एज के अकॉर्डिंग व्यवहार करो। ओके डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट? ओके डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, इट्स अप्रोप्रिएट, क्या ये उचित है? ओके सो स्टूडेंट्स द मीनिंग ऑफ थर्ड नंबर क्वेश्चन इज पीपल आर ऑफन आस्क्ड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर एज, डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट? ओके तो लोगों से हमेशा कहा जाता है अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करिए, अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करिए, आपको क्या लगता है कि ये क्या ही उचित है? तो स्टूडेंट्स जैसे चिल्ड्रेन होते हैं ना, वो गेम प्ले कर सकते हैं ना, और जो एल्डर होते हैं उनसे, उनके जो बड़े लोग होते हैं, तो क्या वो गेम प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े है ना? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। ओके तो स्टूडेंट्स लेट्स सी थर्ड नंबर आंसर। ओके ये क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपके कि मतलब लोगों से कहा जाता है, अक्सर लोगों से कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करो, अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करो। आपको क्या लगता है, क्या ये उचित है? लोगों को अपनी एज के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए? ओके एज इंपॉर्टेंस रखती है हमारी वर्क के लिए। तो स्टूडेंट योर थर्ड नंबर आंसर इज आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज अकॉर्डिंग मीन्स देयर्स नो रिलेशन बिटवीन अ वर्क एंड अवर एज. We can do all work which we are able. There's no importance for doing any work to our success or happiness of age or personality and other thing in our life. Okay आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचती हूँ, ओके या लगता है, आई थिंक मीन्स मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट इट्स मीन यह उचित नहीं है, बिकॉज मीन्स क्योंकि। ओके तो स्टूडेंट्स इट्स नॉट अप्रोप्रिएट इट मीन यह उचित नहीं है। व्हाट्स नॉट अप्रोप्रिएट? ओके क्या उचित नहीं है? तो स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन में अभी रीड किया ना, ये उचित नहीं है कि हाँ लोग प्राय कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए, ये उचित नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं। ओके तो आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है, बिकॉज मीन्स क्योंकि अकॉर्डिंग मी मेरे अनुसार, देयर्स नो रिलेशन। ओके यहाँ कोई भी रिलेशन मीन्स संबंध, ओके बिटवीन मीन्स बीच में, आवर मीन्स एक काम के, एंड मीन्स और, अवर एज मीन्स हमारी उम्र की। ओके आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज अकॉर्डिंग मी देयर्स नो रिलेशन बिटवीन अ वर्क एंड अवर एज। तो मुझे लगता है ना, या मैं सोचती हूँ कि यह उचित नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार एक काम में और हमारी एज में, हमारे उम्र में ओके कोई भी रिलेशन नहीं होता है, कोई भी संबंध नहीं होता है। वी कैन डू ऑल वर्क विच वी आर एबल, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, डू मीन्स करना, ओके वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, डू मीन्स कर, ऑल मीन्स सभी, वर्क मीन्स कार्य, विच मीन्स जो, वी मीन्स हम, ओके आर एबल मीन्स योग्य। वी कैन डू ऑल वर्क विच आर एबल, ओके हम वो सभी वर्क कर सकते हैं जिनके हम योग्य हैं, मतलब जितनी भी वर्क हम कर सकते हैं ना, तो वो हम जितने वर्क के हम एबल हैं, जो वर्क हम करने के योग्य है, वो सारी वर्क हम कर सकते हैं। ओके देयर इज नो इंपॉर्टेंस फॉर डूइंग एनी वर्क टू अवर सक्सेस और हैप्पीनेस ऑफ एज और पर्सनैलिटी एंड अदर थिंग्स इन अवर लाइफ। ओके तो देयर इज नो इंपॉर्टेंस, यहाँ कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ कोई भी महत्व नहीं, इंपॉर्टेंस इज महत्व, फॉर डूइंग मीन्स करने के लिए, एनी वर्क मीन्स कोई भी काम, टू अवर सक्सेस इट्स मीन हमारी सफलता के लिए, और मीन्स या हैप्पीनेस मीन्स खुशी, प्रसन्नता, ओके ऑफ एज मीन्स उम्र की, और मीन्स या पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व की, एंड मीन्स और अदर थिंग मीन्स दूसरी चीज़ों की, इन अवर लाइफ मीन्स हमारे जीवन में, इन अवर लाइफ इट्स मीन हमारे जीवन में।
There's no importance for doing any work to our success or happiness of age or personality and other things in our life. It's mean कि हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारी एज, हमारी पर्सनैलिटी, इट्स मीन हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए या हमारी प्रसन्नता के लिए, ओके, हमारी प्रसन्नता के लिए या हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी जो एज है, पर्सनैलिटी है या कोई अदर थिंग्स है, कोई दूसरी चीज़ है, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई भी इसका महत्व नहीं होता है. क्लियर? तो स्टूडेंट, योर थर्ड नंबर आंसर इज आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज अकॉर्डिंग मी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अ वर्क एंड अवर एज. वी कैन डू ऑल वर्क विच वी are able. There's no importance for doing any work to our success or happiness of age और पर्सनैलिटी एंड अदर थिंग्स इन आवर लाइफ. इट्स मीन मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है कि लोगों से कहा जाए कि अपनी एज के अकॉर्डिंग वर्क करो, ओके, अपनी मतलब उम्र के अनुसार वर्क करो. ये मुझे लगता है ये उचित नहीं है. ओके, मुझे लगता है ये उचित नहीं है क्योंकि मेरे अनुसार एक कार्य और हमारी उम्र के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता. हम वो सभी कार्य कर सकते हैं जो करने के हम योग्य हैं. ओके, एंड देयर इज नो इम्पोर्टेंस फॉर डूइंग एनी वर्क टू अवर सक्सेस और हैप्पीनेस ऑफ एज और पर्सनैलिटी एंड अदर थिंग्स इन अवर लाइफ. ओके, इट्स मीन कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए, ओके, किसी भी वर्क को करने के लिए सफलता को पाने के लिए या प्रसन्नता को पाने के लिए, ओके, हमारे जीवन में सफलता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए कोई भी वर्क करने के लिए हमारी एज, हमारी पर्सनैलिटी या किसी अदर थिंग की कोई भी महत्व नहीं होता है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, the meaning of this question, the meaning of this answer of this third number आंसर इज, जो थर्ड नंबर आंसर है इसका मीन ये कि इसमें जरूरी नहीं होता है कि अगर हमें कोई वर्क करना चाहे तो उसमें हमारी एज, हमारी पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस हो, उसका महत्व हो. आज के डेट में, आज के दिनों में क्या है, नाउ दिस डेज हमारे एज और पर्सनैलिटी की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. इंपॉर्टेंस किसकी? हमारे टैलेंट की, ओके, हमारे हार्डवर्क की, हमारे स्ट्रगल की. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ओल्ड पर्सन है तो ऐसा नहीं कि वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, या कोई चिल्ड्रेन है तो जरूरी नहीं कोई चिल्ड्रेन है मतलब कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है तो मतलब अपनी छोटी सी एज में मतलब कोई सक्सेस अचीव नहीं कर सकता है. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. एज के लिए, इट्स मीन एज और पर्सनैलिटी की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. हमारे आज के दिनों में, हमारी लाइफ में अगर हम कोई वर्क करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो पर्सनैलिटी या एज हमें नहीं रोक सकती है. ओके, so students, I have described you all questions of this exercise C, think and answer of this chapter 3 Olympic Granny, and I hope you must have understood all these questions of this chapter 3. You have no problem in this exercise C, think and answer, and exercise B second. Okay, so students, today's your classwork is that note down exercise B second and after it exercise C, think and answer of this chapter 3 Olympic Granny in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days classwork, and students, your homework is that learn exercise B second and after it learn exercise C, think and answer of chapter 3 Olympic Granny from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. So students, your class 1 homework is clear ना? आपको क्या करना है? एक्सरसाइज B सेकंड नोट डाउन करनी. क्लियर? स्टूडेंट्स, हम लोग B फर्स्ट एक्सरसाइज नोट डाउन कर चुके थे ना. ओके, तो आपको इसी के ब्लॉक क्या करना है? सेकंड नंबर कॉन्टेक्स्ट नोट डाउन करना है और ABC क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने. क्लियर? एंड आफ्टर इट आपको एक्सरसाइज C एज इट इज नोट डाउन करने. क्लियर? फर्स्टली में से CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग, एक्सरसाइज C, थिंग एंड आंसर, एंड लास्ट राइट डाउन दीस क्वेश्चन आंसर एंड योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर नोट करना. तो एक्सरसाइज B और एक्सरसाइज C आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में नोट डाउन करना है. ये आपका आज का क्लास वर्क है. एंड स्टूडेंट, आपका होमवर्क क्या है कि आपको एक्सरसाइज B सेकंड लर्न करनी है क्वेश्चन आंसर, एंड एक्सरसाइज C के क्वेश्चन आंसर लर्न करनी है फ्रॉम योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. इट्स अ 2 days होमवर्क. आपका होमवर्क है. ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, note down exercise B second and exercise C, think and answer of chapter 3 Olympic Granny in your Fair English Literature notebook and send me your work here. Thank you.